Today, my friends, as I was praying, प्रिय दोस्तों, जैसे आज मैं प्रार्थना कर रहा था, I saw that मैंने देखा कि you were facing problem after problem after problem in life. कि आप अपने जीवन में समस्याओं के ऊपर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या का सामना कर रहे हैं And और your face has turned into a face of defeat. आपका चेहरा एक हार के चेहरे में तब्दील हो गया है। Not being able to handle the pressure and the oppression of these problems. और इन समस्याओं के दबाव को आप नहीं झेल पा रहे हैं। A face of dejection, एक निराशा का चेहरा, a face of hopelessness has come upon you. एक आशा रहित चेहरा आपके ऊपर आ गया Your face might have turned into a face of sorrow. और आपका चेहरा हो सकता है दुख के चेहरे में बदल गया। You might be facing failures in your exams again and again and again. अपनी परीक्षाओं में हो सकता है बार बार असफलताओं को देख रहे हैं। In your studies, you might be facing defeat after defeat, not being able to go forward. अपनी पढ़ाई में हो सकता है हार के बाद हार देख रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। What is the hope for me? आपके लिए क्या आशा है? What is the hope for me? मेरे लिए क्या आशा है? You would have lost all hope. अपनी आशा को आपने खो दिया। You might be drinking and drinking because of the losses in your business. अपने व्यापार में नुकसान के कारण आप पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। Because you're failing again and again in your job. क्योंकि अपनी नौकरी में आप बार बार असफल हो रहे हैं। Sent out to look for job after job. और अब बाहर जा रहे हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी को खोज रहे हैं। Drinking to drown your sorrow. अपने दुख को डुबाने के लिए पी रहे हैं। To drown your hopelessness. अपनी निराशा को डुबा रहे हैं। You might be facing shame in your family. अपने परिवार में लज्जा का सामना कर रहे हैं। They might be saying, why did you marry and come into our family? हो सकता है वो कहते हैं कि क्यों तुम शादी करके हमारे परिवार में आ गए। Not having anyone to turn to. और किसी की ओर आप फिर नहीं सकते। A face of shame and rejection. लज्जा और त्याग का एक चेहरा। Or you might be falling into sin again and again and losing hope for righteousness. और धार्मिकता की आशा को आप खो दे रहे हैं पाप में बार बार पड़कर। You might be so discouraged and dejected today, my friend. आज आप हो सकता है बहुत निराश हैं और त्यागे गए हैं। The psalmist says in Psalm 42:5, भजन संहिता 42:5 में भजनकार कहता है, Why, my soul, are you downcast? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? Why are you so disturbed within me? और तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है? Why are you so downcast? क्यों तू व्याकुल है? You might be so dejected because of these sorrows. इन दुख की वजह से आप निराशा में हो सकते हैं, Because of the failure. असफलताओं की वजह से। In Genesis 4:6 we read, उत्पत्ति 4:6 में हम पढ़ते हैं, The Lord asked Cain परमेश्वर ने कैन से पूछा when his offering to the Lord got rejected. जब उसकी भेंट परमेश्वर ने अस्वीकार किया, Cain, why are you so angry? कैन तू क्यों इतना नाराज है, गुस्सा है? Why is your face so downcast? क्यों तेरा चेहरा मुरझाया सा है, लटका हुआ है? Being downcast because of the curses of sin. वह उतरा है क्योंकि श्राप के कारण पापों के। Being angry because of the curses of sin. वो गुस्सा है, नाराज है पापों के श्राप के कारण। Sin brings curses and death. पाप तो श्राप और मृत्यु लाता है। You might be angry because of that. आप हो सकता है उसकी वजह से नाराज हैं, Blaming God. परमेश्वर को दोष लगाते हैं। Blaming others for these curses to come into your life. इन श्रापों के आपके जीवन के आने के कारण आप दूसरों पर इल्जाम लगाते Or हैं blaming yourself. या अपने आप पर इल्जाम लगाते हैं। Being hard to yourself. अपने आप के लिए बड़े कठोर हैं, Feeling downcast and dejected. निराश हैं और त्यागे हुए हैं। There was a boy who was living in a village. एक गांव में एक लड़का रहा करता था। His parents were earning daily wages उसके माता पिता तो दिहाड़ी का काम किया करते थे and doing menial jobs to survive. और छोटे काम किया करते थे जीवन व्यापन के लिए। But this boy, as he was studying school, had
a passion to become an MBBS doctor. लेकिन इस बच्चे के अंदर ये चाहत थी कि वो बड़ा होकर MBBS की पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। He had a big hope and dream. उसके पास बड़ी आशा और सपने थे। His parents urged him, saying that will be so difficult, study in an engineering college. और उसके माता पिता ने कहा कि यह तो बड़ा कठिन होगा कि तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करो। You might not be able to get a seat. तुम्हें तो सीट भी नहीं मिल पाएगी। But he persevered and said, no, I will do my medical studies. And he studied for his NEET exam. और बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, और उसने नीट की परीक्षा को दिया। Studied and studied, and in the first NEET exam, he failed. और वो पढ़ाई करता रहा और पहली परीक्षा में वो असफल हुआ। He couldn't get the mark. उसे अंक नहीं मिले। He was so disappointed. वो बहुत निराश हो गया। His parents again urged him. उसके माता पिता ने उसे फिर से कहा, And despite the pressures from his parents, he said, no, I will only study this. And he spent one more year just studying and preparing for NEET exam. और अपने माता पिता के दबाव के बावजूद उसने कहा कि नहीं, मैं यही पढ़ाई करूंगा, और उसने 1 वर्ष और अपनी पढ़ाई को दिया। But alas, he failed again. और वो फिर से असफल हो गया। His parents reprimanded him and scolded him और उसके माता पिता ने उस पर दबाव बनाया और डांटा। and said, why are you doing this? Come, let me apply for a engineering college seat for you. और उसके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। But one day when the parents had left the home for a trip, और एक दिन जब उसके माता पिता किसी कार्य से बाहर गए, this boy couldn't bear the shame before his parents, अपने माता पिता के सामने अपनी लज्जा को नहीं झेल पा रहा था, couldn't bear the failure, अपनी असफलताओं को नहीं झेल पा रहा था, bear to face society. समाज का सामना नहीं कर पा रहा था। He hung himself and died. उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। Man gets so dejected because of the failure. मनुष्य कितना उदास हो जाता है इन असफलताओं के कारण। This is what sorrow in this world does to us. और यही तो इस संसार में दुख करता है। It makes us feel so dejected, saying your life is over. वो हमें इतना उदास कर देता है कि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी असफल है। When we don't get what we want, we get so depressed and dejected. हमें जब जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो हम उदास और निराश हो जाते हैं। But my friends, we shouldn't be hoping from these things in this world to give us life. पर दोस्तों, हमें इन संसार से इन चीजों के विषय में आशा नहीं रखनी चाहिए। Shouldn't put our hope in such achievement. ऐसे उपलब्धियों पर अपनी आशा नहीं रखनी चाहिए। We shouldn't put our hope in receiving great praise and honor. बहुत नाम और शोहरत के लिए अपने आशा को नहीं रखनी चाहिए। We should be placing our hope in the hands of the Lord Jesus to live with Him with joy. हमें अपने जीवन को, अपनी आशा को यीशु मसीह के हाथ में रखना चाहिए ताकि आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। None of these things can satisfy us in this world. इस दुनिया में ऐसी कोई भी बातें हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। But when you give your life to live with Jesus, लेकिन जब अपने जीवन को यीशु के हाथों में आप समर्पित करते हैं, there is hope evermore, वहां पर अनंत की आशा है, joy evermore. बहुतायत का आनंद। You feel like you've gained life itself. आपको ऐसा लगेगा कि आपने जीवन को पा लिया। Today the Lord say, आज परमेश्वर कहते हैं, I am going to make your face to be filled with joy. मैं तुम्हारे चेहरे को आनंद से भर दूंगा। I'm going to fill your face with my glory. मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी महिमा से भर दूंगा। Not with dejection, उदासी से नहीं, not with sorrow, गम से नहीं, not to give up, हार मानने के लिए नहीं, but I am going to make your face shine with my glory. लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी महिमा से चमकदार बनाऊंगा। Numbers 6:25. गिनती 6:25। The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। Right now, as you're putting your hope in the Lord, जैसे इस समय अपनी आशा को परमेश्वर पर रखते हैं, his face is shining upon you. उसका चेहरा आप पर चमकदार हो रहा Young है। people, his face is shining upon you. जवान बच्चों, आपके ऊपर उसका मुख चमक रहा है। The Lord is compassionate unto you. परमेश्वर आप पर अनुग्रहकारी है। I don't want my child to give up.
मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा असफल हो। I want to make his face to shine with my glory, मैं चाहता हूं कि उसका चेहरा मेरी महिमा से चमकदार हो। says the Lord. यह परमेश्वर कहता है। Isaiah 61 says, यशाया 61 कहता है, Arise and shine, for my light has come. उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। The glory of the Lord rises upon you. और परमेश्वर का महिमा का तेज तुझ पर उदय होता है। As the Lord's face shines upon you, जैसे परमेश्वर का तेज आप पर चमकता His है, glory rises upon you. उसकी महिमा का तेज उठता है। As His glory rises. और जैसे उसकी महिमा का तेज उठता है, Today He told me, आज उसने मुझसे कहा, you will become His Zion, His people of Zion. आप उसके सियोन के लोग ठहरेंगे। He wants to make you His Zion. वह आपको अपनी सियोन बनाना चाहता है। They shall call you the city of the Lord, वह तुम्हें परमेश्वर का शहर कहेंगे, a people of the Lord, परमेश्वर के लोग, Holy One of Israel, वह पवित्र जो इज़राइल का है, Zion. सियोन। God wants to make you His Zion, परमेश्वर आपको अपना सियोन बनाना चाहता है, people of His Zion. सियोन के लोग। We saw the majestic Mount Zion in Israel when we went there. हमने उस सियोन पर्वत को देखा जब हम इज़राइल गए। This Zion was made as the city of David when he conquered it. यह सियोन तो दाऊद के देश में बदला गया जब उसने उस देश को जीता। The beloved servant of God. परमेश्वर का प्रिय दास। And he chose to make Zion to establish his kingdom in Zion. और सियोन को उसने चुना कि अपने साम्राज्य को स्थापित And he करे। placed the ark of the covenant in that place so that the Lord Almighty can rest in that place and rule. और उसने वाचा के संदूक को उस स्थान पर स्थापित करा ताकि परमेश्वर का महिमा उस स्थान पर उतरे, उसकी उपस्थिति बनी रहे। Wherever this holy ark of the covenant was kept, the Lord would rest his presence there. और जहां कहीं ये वाचा का संदूक रखा जाता, परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतरा करती। That's why this place is so special to the Lord. और इसलिए स्थान परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Psalm 132:13 says, भजन संहिता 132:13, For the Lord has chosen Zion, क्योंकि परमेश्वर ने सियोन को अपनाया है He has desired it for His dwelling place. और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। What is Zion? सियोन क्या है? It is the dwelling place of the Lord. यह तो परमेश्वर का निवास स्थान है। Psalm 87:2 says, भजन संहिता 87:2 कहता है The Lord loves the gates of Zion more than any other dwelling place of Jacob. कि परमेश्वर याकूब के सारे निवासों से बढ़कर फाटकों को, सियोन के फाटकों से प्रीति रखता है। He loves this place. वह स्थान से प्रीति रखता है, He dwells there. उसकी उपस्थिति वहां है। Today, आज Zion is not a place somewhere. सियोन कोई एक स्थान नहीं है, You are His Zion, आप उसके सियोन हैं, where the Lord Almighty shall rest and dwell, परमेश्वर जहां अपनी उपस्थिति को उंडेलता है और आराम करता है, where the glory of the Lord arise. जहां परमेश्वर की महिमा उतरा करती है। His face will shine upon you, उसका चेहरा आपके ऊपर चमकेगा and your face will reflect His glory. और आपका चेहरा उसकी महिमा को परावर्तित करेगा। Your face will not reflect the death of this world anymore. आपका चेहरा इस संसार के मृत्यु को नहीं परिवर्तित करेगा। Your face will not show defeat anymore, आपका चेहरा अब हार को नहीं दिखाएगा, not be dejected anymore. अब उदासी नहीं। You will arise with the glory of God आप परमेश्वर की महिमा के साथ उठेंगे, as God dwells in this place, जैसे परमेश्वर इस स्थान पर उपस्थित है, making it a holy place of God. इसे परमेश्वर की पवित्र स्थान बनाने के लिए The world will see this and revere it. लोग इसे देखेंगे और इससे भय मानेंगे। Automatically, every praise, glory, and honor will follow. और खुद ब खुद सारी महिमा आदर अपने आप निकलेगी Automatically, every riches and blessing will follow. और खुद ब खुद सारी आशीषें आएंगी। He says, riches, silver, and gold is वो mine. कहता है सारा धन, चांदी और सोना मेरा है In him are hidden all treasures of wisdom. और उसमें ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। It shall all follow you.
यह सब आपके पीछे आएंगे, It shall all follow you यह सब आपके पीछे आएंगे। as you become Zion, the dwelling place of the Lord. जैसे आप सियोन बनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, उसकी महिमा का स्थान। He's called us together tonight to make us a people of Zion. उसने आज हमें इसलिए एक साथ बुलाया है कि हम मिलकर उसके सियोन बने। He will bring you into Zion firstly with the joy of salvation. वह आपको सियोन में लेकर आएगा उद्धार के आनंद के साथ। He will bring us into this holy city वह आपको इस पवित्र शहर में लेकर आएगा with the joy of salvation. उद्धार के आनंद के साथ। Isaiah 35:10 says so. यशाया 35:10 कहता है, And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing. और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, Everlasting joy shall be upon their head. और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। They shall obtain gladness and joy, and sorrow and sighing shall flee away. वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। Not just any joy. वह सिर्फ कोई आनंद नहीं, The joy of the Lord will keep welling in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर का आनंद उछलता रहेगा। That's the joy of salvation. यही तो उद्धार का आनंद है। Breaking every power of sin, हर एक पाप के सामर्थ को तोड़ता है, every power of darkness coming against us. हर एक अंधकार की ताकत जो आपके विरोध में आती है, Breaking every sorrow and sighing. हर एक लंबी सांस का लेना और दुख को You तोड़ना। will return to Zion with singing. आप जय जयकार करते हुए सियोन को लौटेंगे। There was a man called Maikanan. नाम का एक व्यक्ति है, Non-stop he would be drinking and taking cigarette. और वह लगातार पीता रहता और सिगरेट का सेवन करता। His mother said, "Why did I give birth to you? उसकी माता ने कहा कि मैंने क्यों तुम्हें जन्म दिया? Out of my 10 children, I regret giving birth to you. मैं अपने 10 बच्चों में से मैं पछताती हूँ तुम्हें जन्म देकर। You're bringing us shame. तुम लज्जा लेकर आते हो। We are losing all the peace in our family because of you." हम अपने परिवार में शांति को खो रहे हैं तुम्हारे कारण। He began drinking more. और वह अधिक पीने लग गया, 24 hours. 24 घंटे, It made him vomit blood. और वो खून की उल्टियां किया करता। He would drink with his friends. वो अपने दोस्तों के साथ पीता, And he said at a point, और एक समय पर 70 of his friends with whom he would be drinking had died. और वह सारे दोस्त जो उसके साथ पीते रहते थे वे मृत्यु को पाए। One by one they were gone. एक के बाद एक वो सब मर गए। We were drinking so much. वो इतना अधिक पिया करते, They thought he would be next. और उन्होंने सोचा कि अगला यह व्यक्ति होगा। His wife was praying and praying. उसकी पत्नी तो प्रार्थना कर रही थी। One day the Lord said to her, एक दिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी से कहा, "My daughter, you're praying for your husband to be delivered and leave drinking. मेरी बेटी, तुम अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि वो इस लत से छुड़ाया जाए। Have you ever prayed for him to become my son? क्या तुमने ये प्रार्थना की है कि वो मेरा बेटा बने, To have me in his heart?" ताकि उसके हृदय में मैं रहूं? That shook her. और इस बात ने उसे झंझोड़ दिया। As she started to pray for him to become the son of God, the child of God, और जैसे उसने प्रार्थना को शुरू की कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए, one day something touched him and convicted him. और एक दिन किसी बात ने उसे छुआ और उसे झंझोड़ दिया, It made him cry and submit, और वो सिर्फ रोया और समर्पण किया, and made him free of this addiction. और इस लत से उसे आजादी मिल गई। And they came together as a couple to the Jesus Calls prayer और tower. एक दिन वो दाम्पत्य जोड़े के रूप में यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आए, They would listen to the word of God being spoken there. और वहां पर परमेश्वर के वचन को सुना जो वहां पर बोया जा रहा था। There they spoke how the Lord Jesus suffered on the cross to banish every curse of sin from our life. और वहां पर इस प्रकार से संदेश दिया जा रहा था कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा सारे पाप और श्राप को मिटा दिया। They too submitted their life. और उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पण किया, And he started to have a joyous family life. और पारिवारिक जीवन में आनंद को महसूस करने लगे। You know what? आपको मालूम क्या? After that, he came to the
prayer intercessors to be trained to pray for others. और उसके बाद वो प्रार्थना भवन में आकर शिक्षा ग्रहण किया ताकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखे। Today he's not a man waiting to die because of his sinful addiction. और आज वह व्यक्ति वह नहीं है जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है इन बुरी आदतों के कारण। Today he's a man being used by God to bring life to others. आज वह व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन में जीवन लेकर आता है, परमेश्वर का जीवन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The glory of the Lord rises upon us. परमेश्वर की महिमा का तेज उदय होता है। He brings us back to become the people of Zion to live with him. वो हमें वापस लेकर आता है ताकि हम सियोन की प्रजा ठहरे उसके साथ रहने के लिए। Today God's Spirit is going to come upon you. परमेश्वर की आत्मा आज आपके ऊपर आएगी। All the addictive spirits will leave. हर एक नशे और लत की आत्मा छोड़कर जाएगी। Evil corruptive ways will leave. हर एक दुष्ट के बातें छोड़कर जाएगी। The oppressions of the devil will leave. शैतान के प्रताड़ना जाएगी। The abuse you might be giving to others will leave. जो दूसरों को आप बुरा भला कहते हैं वह बातें छोड़कर जाएगी। Such ways will stop. और ऐसे बातें रोकी जाएगी। And you will have the joy of the Lord within you to give life to others. और आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होगा ताकि आप दूसरों को जीवन दे पाए। Being brought into God's Zion. परमेश्वर के सियोन में वापस लाए जाकर। Secondly, he makes our desert into a वो garden. हमारे निर्जल देश को अपनी वाटिका में बदल देता है। No more crying and complaining because of the wilderness. इस निर्जल देश के कारण अब और रोना और विलाप करना नहीं। Saying, I have lost everything, I have lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, यह कहते हुए It is gone. यह तो चला गया। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, Gladness and joy. आनंद और हर्ष, Thanksgiving and singing. धन्यवाद और भजनों का गाना। As the Lord makes your wilderness into a garden of Eden. जैसे परमेश्वर आपके निर्जल देश को अदन की वाटिका में बदल देता है। Do you believe the Lord can do it? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यह कर सकता है? He is going to transform your life. वह तो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। What a wonderful Father. कितना सुंदर अद्भुत पिता है। Psalm 133:3 says, भजन संहिता 133:3 कहता है, It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। On this dwelling place of Zion, इस सियोन के परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान from में there he bestows his blessing. वहां से परमेश्वर आशीष देता है, ठहराई है आशीष को। From there he pronounces life forevermore. और वहां से वो जीवन की उद्घोषणा करता है हमेशा के लिए। There was a man called Golo Thajam in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में एक भाई है जिनका नाम गोलोथ्रोमेन है। He lost his father when he was just 6 years old. और 6 वर्ष की आयु में ही उसने अपने पिता को खो दिया। He was struggling as a little boy. एक छोटे बालक के रूप में वह संघर्ष कर रहा His था। mother said, there's no way I'm going to be able to raise this family. उसकी माता ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस बच्चे की परवरिश कर सकूं। She was struggling to support them. वह उन्हें सहायता करने से संघर्ष कर रही थी। He didn't know how he was going to come up in life उसे नहीं मालूम था कि अपने जीवन में कैसे उठाया जाएगा, as his family was struggling. जैसे उसका परिवार संघर्ष करता था। At that time, और उस समय पर in their neighbor's house, he found the Jesus Calls magazine. अपने पड़ोसी के घर में उसने यीशु बुलाता के पत्रिका को देखा। As he was growing up, he found this magazine and started reading it. और जैसे वो बढ़ता चला गया उसने उस पत्रिका को पढ़ना प्रारंभ किया। Listening to all the words of hope in it, his faith became strengthened that there was hope in his और उसमें life. लिखी गई सारी आशा की बातों को पढ़कर उसके अंदर विश्वास उठता रहा। He read about the young partners plan and he enrolled in it to support the Jesus Calls ministry. और उसमें युवा सहभागी के विषय में उसने पढ़ा और अपने आप को उसमें जोड़ा ताकि सेवकाई की सहायता कर सके। There it was said that the intercessors of Jesus Calls would be praying for the young partners every day, calling their name. और वहां पर उसने पढ़ा कि यीशु बुलाता है कि प्रार्थना योद्धा लगातार युवा सहभागियों के लिए उनके नामों को लेकर प्रार्थना करते हैं। And God would make
the young partners a blessing to so many people और परमेश्वर युवा सहभागियों को दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराता है in a young age. अपने जवानी के दिनों में। That touched him. और इस बात ने उसे स्पर्श किया And he wrote letters to Dr. Paul Dinakaran frequently, और वह लगातार डॉक्टर पॉल दिनकरन को पत्र लिखता रहा, sharing all his burden. अपने सारे बोझ को बांटते हुए, And he was so comforted और वो बहुत आराम पाया and praying along with the replies. और उन जवाबों के द्वारा वो He प्रार्थना had a करता desire. रहा। उसके अंदर एक चाहत In थी। his 10th school exam, there was a record in the school that the highest percentage was 76%. और उसके स्कूल में एक रिकॉर्ड था कि सबसे ऊंचे अंक 76% थे But he wanted to get the highest score. और वह ऊंचे अंकों को पाना चाहता था। So he believed in the promises and prayed. और उसने वाचाओं पर विश्वास किया और प्रार्थना की And he scored 77%, beating the 76% by 1. और 76% को पछाड़ते हुए उसने 77% अंक को पाया They awarded him as the best student in the school. और स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया And और he grew up to finish his degree also. और उसने अपनी डिग्री की पढ़ाई भी पूरी की। God blessed him with a wonderful government job as a teacher. परमेश्वर ने उसे एक सुंदर सरकारी नौकरी दी टीचर के रूप में। Even while teaching and doing his job, God made him complete his master's degree also. और नौकरी करते करते परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर पाए। He said, I could feel the Lord Jesus being a heavenly father to me in place of my father. और उसने कहा कि मैं अपने पिता के स्थान पर अपने स्वर्गीय पिता यीशु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ, Guiding me and strengthening me. जो मुझे बल देता है और मेरी अगुवाई करता है। And he came to the Chennai prayer tower to get prayed. और प्रार्थना कराने के लिए चेन्नई के प्रार्थना भवन में आया The prayer intercessor said, the Lord will give you a wonderful life partner soon. और प्रार्थना योद्धाओं ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी जल्दी मिलेगा। And amazingly, that year he got married. और अद्भुत रूप से उसी वर्ष उसका विवाह हुआ God increased his family to have 4 children. और परमेश्वर ने उसके परिवार को बढ़ाया और उसे 4 बच्चे प्राप्त हुए He enrolled his family in the family blessing plan. और उसने अपने परिवार को परिवार आशीष योजना में जोड़ा And he said, today God has raised me up so much to become the headmaster of a reputed school in Andhra Pradesh and in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश ने परमेश्वर ने उसे एक उच्च स्थान पर हेडमास्टर के रूप में चुना हुआ है और वो वहां वो कार्य करता है। There are 50 schools under me. और उसके अंदर में 50 स्कूल है And he has received the best teacher award in the state. और बेस्ट टीचर के अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया पूरे राज्य में। Are you saying that you're struggling today, my friend? क्या आप कह रहे हैं दोस्तों कि आप संघर्ष करते हैं? Your life is in wilderness today, हो सकता है आपका जीवन मरुस्थल के स्थान पर है, not knowing where it is going to go. आपको नहीं मालूम कहाँ जाना है। There is a Lord who keeps you as his Zion वहां परमेश्वर है जो आपको अपने सियोन की तरह संभालता है and bestows his blessing from there और वहां से आप पर आशीष देता है and makes your desert into a garden. और आपके मरुस्थल को वाटिका में बदलता है। Receive him today. आज उसे ग्रहण करें। He knows how to bless you and elevate you to a place of great honor. उसे मालूम है कि आपको कैसे आशीष देना है और उठाना है एक महान आदर के स्थान पर। God will raise you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Thirdly, he becomes the cornerstone of your और life. तीसरी बात, वो आपके जीवन में नींव का पत्थर, कोने का पत्थर बनता है। 1 Peter 2:6 says, पहला पत्रस 2:6 कहता है, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious. देखो मैं सियोन के कोने के सिर का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ Whoever believes in him will not be put to shame. और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। Jesus is going to become your cornerstone, being the rock of your life. और वो परमेश्वर यीशु मसीह आपके कोने का, नींव का पत्थर बनेगा। God is going to become so close to you, परमेश्वर आपसे इतना करीब आ जाएगा, so attached to you. इतना अधिक आपसे जुड़ जाएगा, You're going to feel his wonderful presence. आप उसकी अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे।
Even while reading the Word of God, you're going to feel His great presence, वचन को अध्ययन करते समय भी आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, guiding you and leading you. आपकी अगुवाई करते हुए, In every part of your life, guiding you. आपके जीवन के हर एक भाग में उसकी अगुवाई को आप पाएंगे। The cornerstone for all your decision, आपके हर एक निर्णय के लिए वो नींव का पत्थर, for all your life choices, जीवन के हर एक चुनाव के लिए leading you Himself. स्वयं अगुवाई करता हुआ। Every part of your life is going to be built around Him. हर एक आपके जीवन के भाग उसके इर्द गिर्द रचाए जाएंगे। Just like David, you will have a great thirst to always seek the Lord for anything and everything. दाऊद की तरह एक ऐसी प्यास कि हर समय उसकी प्यास में लगे रहें, उसे ढूंढते रहें। The thirst to have the Lord in your heart. एक प्यास कि परमेश्वर आपके हृदय में रहे। He will become the cornerstone of your वह life. आपके जीवन में नींव का पत्थर ठहरेगा। He will protect वह you, आपको सुरक्षा देगा, watch over you, आपको देखेगा and lead you. और आपकी अगुवाई करेगा। There was a family who invited me to come to their house to pray for them. एक परिवार जिसने मुझे अपने घर में न्योता दिया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। I had dinner with them, मैं उनके साथ डिनर किया and I thought they'll ask me to pray for a huge list of problems. That's why they have invited और me. मैंने सोचा कि उनके पास प्रार्थनाओं की लंबी सूची होगी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। But I asked them what I should pray for. लेकिन मैंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं। They said, उन्होंने कहा, we have one request, brother. हमारे पास एक निवेदन है भाई, We want Jesus to walk in our family, to walk in our home with us. हमें चाहिए कि यीशु हमारे परिवार में चले, हमारे घर पर चले फिरे। We want to feel His peace and His presence with us always. हमें उसकी शांति और उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होनी चाहिए, That is enough for और us. वही हमारे लिए काफी है। That is all that we want. और यही तो है, हम सिर्फ यही चाहते The हैं, thirst for the Lord Jesus यीशु की प्यास, to be with you ताकि उसके साथ रहें। shall fill your heart. वो आपके हृदय को भर देगा। As the Lord becomes the cornerstone of the people of Zion. जैसे सियोन के लोगों के नींव का पत्थर परमेश्वर ठहरता I है। heard back from them with great news that God has elevated him in his job and given him promotion. और मैंने एक गवाही को सुना कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है और नौकरी में पदोन्नति को दिया है। Blessed his children to shine in their studies बच्चों की पढ़ाई में वो ऊंचे उठ रहे and हैं give them a happy married life. और पारिवारिक जीवन आनंद से भरा हुआ है। But more than everything, feeling the presence of Jesus walking with them in their home and in their life. लेकिन सब बातों से अधिक अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं, उसके चलते फिरने को। You will enjoy living with Jesus आप आनंद लेंगे यीशु की उपस्थिति का। in Zion. सियोन में, People of Zion, सियोन की प्रजा, you're privileged to walk with the Lord. आपके लिए अनुभव है कि उसके साथ चले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Finally, Jesus comes back to Zion to collect his children in this और world. अंत में परमेश्वर यीशु मसीह सियोन में वापस आते हैं ताकि अपनी संतानों को वापस लेकर जाए। Revelation 14:1 says, प्रकाशित वाक्य 14:1 कहता है, Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, the Lord Jesus, वह परमेश्वर यीशु and मसीह, with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। The Lord will come back to collect his people of Zion to be with him forevermore. वो परमेश्वर वापस आएगा ताकि सियोन की प्रजा को वापस ले जाए और उसके साथ हमेशा के लिए रहे, Taking you and me to be with him in heaven in his joyous presence. वो आपको और मुझे लेकर जाएगा ताकि उसकी उपस्थिति में रहे, उसके आनंद में रहे, स्वर्गीय आनंद That's the में। privilege given to the people of Zion, यही तो सियोन की प्रजा को विशेष अधिकार है, who have chosen the Lord himself to be their cornerstone. जिन्होंने यीशु को चुना कि वो उनके नींव का पत्थर बने। He will make his face shine upon you from today. वो आज से अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा।
His glory is rising upon you right now. और इस समय उसके महिमा का तेज उदय हो रहा है। A new spirit, the Spirit of God, is coming to empower you, एक नई आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ्य देने आ रही है, making you the people of God, परमेश्वर का प्रजा बनाने के लिए, watering your life to become a garden, आपके जीवन में जल डाल रही ताकि आप वाटिका बने, redeemed by the Lord with salvation, उद्धार के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए, prospering in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में समृद्ध हो रहे हैं। Young people, are you ready to pray with me? जवान लोगों, क्या आप तैयार हो मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? To cry for Jesus. यीशु को पुकारो। Everybody, will you stand up and pray with me to Jesus? क्या आप सब अपने स्थानों में खड़े होकर और यीशु से प्रार्थना करें, Calling upon His name. उसके नाम को पुकारे। The Father is here वो पिता यहाँ है to collect His children अपने लोगों को जमा करने के लिए and to have compassion to deliver them, और उन पर तरस खाकर उन्हें छुड़ौती देने के लिए, heal them, उन्हें चंगाई दे, love उन्हें them, प्रेम करे, elevate them with His blessing, अपनी आशीष से उन्हें ऊंचा उठाए, fill them with His Holy Spirit, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, remove every darkness from them, उनके जीवन से हर एक अंधियारे को दूर करे, every dejection away from them, उनसे हर एक उदासी को दूर करे, every sorrow away. हर एक दुख को दूर करे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु प्रभु। He's working in you right इस समय now. वो आप पे काम करता है, He's coming to you right वो इस now. समय आपके पास आता है। Open your heart. अपने हृदय को खोले, Receive उसे Him. ग्रहण करे, Receive उसे Him. ग्रहण करे। Say, come, Lord Jesus. कहे आइए यीशु प्रभु, Become the cornerstone of my मेरे life. जीवन का नींव का पत्थर बने, Make me your people. मुझे अपनी संतान बनाए, Make me your Zion. मुझे अपना सियोन बनाए। I want to belong with मैं you. आपसे जुड़ना चाहता हूँ, I want me to be your dwelling place, Lord. मुझे आपका उपस्थिति का स्थान बना, Live in my heart, मेरे Lord. हृदय में वास करे, Give me मुझे peace. शांति दे, Give me your मुझे presence. अपने उपहार को दे, Live in my heart, मेरे Lord. हृदय में रहे परमेश्वर। The Lord is coming into you. परमेश्वर आपके भीतर आता है, Every sorrow is leaving. हर एक दुख छोड़कर जा रहा है, All your burdens are made light आपके हर एक बोझ हल्के किए as जाते it हैं, is taken over by the Lord. जैसे वो परमेश्वर के द्वारा ले लिए जा रहे हैं। He is wiping away your tears, वो आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, wiping away your sorrow. आपके दुख को पोंछ रहा है। The Lord has been broken for you, वो परमेश्वर आपके लिए तोड़ा गया, wounded for you. आपके लिए घायल किया गया, You need not suffer, my friend. ताकि आप संघर्ष ना करें दोस्तों। He's healing you, वो आपको चंगाई देता है, healing your broken वो heart. आपके टूटे दिल को चंगा करता है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु प्रभु। We invite you, Lord. आपको स्वागत करते हैं, We invite you, Lord. आपका स्वागत करते हैं। Eluru invites you, Lord Jesus. एलोरो यीशु आपका स्वागत करते हैं। Come into every हर heart. एक हृदय में आ जाए, Come into every young हर एक person. जवानों के अंदर आए। The Holy Spirit is ready to come upon you. वो पवित्र आत्मा तैयार है आने के He लिए। has chosen उसने you आपको चुन लिया है and He's filling you right और now. वो आपको परिपूर्ण करता है Right now. इसी समय। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Open your अपने mouth. मुंह को खोले Desperately call for Jesus. और बड़ी जोर से उसे पुकारे। He is your hope. वही आपकी आशा He है, is your वही joy. आपका आनंद है। He brings every वो blessing. सारी आशीषों को लेकर आता है। My friends, Jesus is मेरे here. दोस्तों, यीशु यहाँ है। He's laying His hands upon वो you. अपने हाथों को आपके ऊपर रख रहा है, Wherever you are, जहाँ कहीं आप है। caring for His little वो children, अपने छोटे बच्चों को संभाल रहा है, caring for His young one. अपने जवानों को संभाल रहा है। The mighty blessing of God is coming upon the young one. वो जवानों के ऊपर एक सामर्थ्य आशीषें आ रही Be है। blessed in the name of यीशु Jesus. के नाम से आशीषित हो। His face is shining upon you. उसका मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमक रहा Many of है। your eyes are being opened to see आप में से Jesus. कईयों की आंखें खुल रही हैं यीशु को देखने के लिए। Many of your hearts are being
filled with the love of Jesus. कईयों के हृदय यीशु के प्रेम से भरे जा रहे हैं। Love is coming. प्रेम आ रहा है। Again and again and again, love is coming. फिर से प्रेम आ रहा है। Waves of love. वो प्रेम की सामर्थ, Waves of compassion. वो तरस की धारा, Waves of mercy upon you. वो दया की धारा। Thank Him, my friend. उसे धन्यवाद दे दोस्तों। He's chosen you. उसने आपको चुन लिया है। He's loved you. उसने आपको प्रेम किया He's है। coming into you. वो आपके भीतर आ रहा है। He's coming into वो आपके you. भीतर आता है। He's coming into वो you. आपके भीतर आता है। Thank Him. उसे ले ले। Say thank you, Jesus. कहे धन्यवाद यीशु। I receive you. मैं तुझे ग्रहण करता I हूँ। praise you. मैं आपकी स्तुति करता हूँ। I praise मैं you. आपकी स्तुति करता I हूँ। honor मैं you. आपका आदर करता हूँ। I receive you in my मैं heart. अपने हृदय में आपको ग्रहण करता हूँ। Holy Spirit is coming in. पवित्र आत्मा आ रहा है। The Spirit of God is flowing in परमेश्वर की आत्मा बह रही है abundantly. बहुतायत के साथ। He's filling you right वो आपको now. परिपूर्ण करता है इस समय। Filling you right now. जहाँ कहीं आप हो, Be filled with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भर जाए। Be filled with the joy of salvation. उद्धार के आनंद से भर जाए। Righteousness is coming into you. धार्मिकता आपके भीतर आती है। His face is shining upon you. उसका मुख आपके ऊपर चमकता है। The glory of the Lord is rising upon you. परमेश्वर की महिमा का तेज आपके ऊपर उदय होता है। Rising upon you. आपके ऊपर उदय होता है। You're being transformed into a new person. आप एक नए मनुष्यत्व में बदल रहे हैं। New person. नए मनुष्यत्व में Every addiction is leaving. हर एक बुरी आदतें जा रही है। Say goodbye to your addiction. अपने आदतों को गुड बाय कहे। Throw that cigarette packet away. उस सिगरेट के पैकेट को फेंक दे। Throw the lustful heart away. वो हर एक वे विचार की आत्मा को जाने दे। Lustful spirit away. हर एक वे विचार की आत्मा को जाने Throw the दे। drinking habit वो away. नशे पीने की आदतों को जाने Throw दे। every drug हर away. एक ड्रग्स को फेंक दे। Throw every evil thought in your head away. अपने हृदय में हर एक बुरी बात को In the जाने name दे। of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, परमेश्वर, command every devil and the demonic powers to leave them. हर एक दुष्ट और दुष्ट की ताकतों को आज्ञा दे कि वो चली जाए। Leave their family. उनके परिवारों को छोड़े। Leave their उनके family. परिवारों को छोड़े। Leave their family. उनके परिवारों को छोड़े। Let there be peace. उनके परिवार में शांति हो। Peace is overflowing into your शांति family, आपके परिवार में बह रही है into your family और life. आपके पारिवारिक जीवन में। Your children are going to rejoice because of the oneness. आपके परिवार के बच्चे आनंद करेंगे एक होने के नाते। Joyful spirit, आनंद की आत्मा, loving spirit. प्रेमी आत्मा, It's binding you वो together. आपको एक साथ बांध रही है। Every child that has left the house, come back in Jesus' वो name. हर एक बच्चा जो छोड़कर चला गया है वो वापस आए यीशु के नाम में। Bring them back, उन्हें Lord. वापस लाए परमेश्वर। Let them be together with their parents and वो obey. अपने माता पिता के साथ वापस रहे और आज्ञाकारी Let them बने। honor the words of their वो parents. अपने माता पिता की बात को माने। Honor them because they obey. उनका आदर करे क्योंकि वो आज्ञाकारी ठहरे। Elevate the young people, Lord. जवानों को ऊंचा उठाए। Still a mighty blessing from God is coming upon your lives, my young friends. और आपके जीवन में जवान दोस्तों, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य आ रही है। I see that the Holy Spirit is forming a bond with you, मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके बीच में एक अच्छे जुड़ाव a को देता friendship है। with you. आपके साथ दोस्ती को। He says that He will never leave वो you, कहता है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। never ever leave you. कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। He will keep you in His वो joy, आपको हमेशा अपने आनंद में रखेगा। keep you in His अपनी righteousness, धार्मिकता में रखेगा and fulfill His और plan. अपनी योजनाओं को पूरी करेगा। He will elevate वो you, आपको ऊंचा उठाएगा। elevate you, ऊंचा उठाएगा। rise up आपको ऊंचा under उठाएगा। the glory of God परमेश्वर की महिमा में ऊंचा उठे। with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के It द्वारा। is coming upon वो you. आपके ऊपर आती है। Coming upon आपके you. ऊपर आती है। Receive. उसे ग्रहण करे। Receive. ग्रहण
करे, receive, ग्रहण करे, receive, ग्रहण करे, receive. ग्रहण करे। All things are made new. सभी बातें नई बना दी जाती है। God is bestowing His blessing. परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलता है। Make them great teachers, Lord. उन्हें अच्छे शिक्षक बनाए परमेश्वर। Great scientists, Lord. महान साइंटिस्ट बनाए। Great servants of God. महान परमेश्वर के दास बनाए। Great talented people. अति प्रतिभावान व्यक्ति Leaders बनाए। around the world. वो दुनिया में अगुवे In ठहराए। top positions. ऊंचे स्थानों In the पर, government. सरकारी स्थानों पर Shining for you. आपके लिए चमकदार ठहरे। Being a blessing to this world. दुनिया के लिए आशीष का सोता बने। Bringing God's answers to this इस world. दुनिया में परमेश्वर के उत्तर बने। Fill them with the prophetic grace. उन्हें भविष्यवाणी के अनुग्रह से भरे। Prophetic power. भविष्यवाणी की सामर्थ, To walk with ताकि God. परमेश्वर के साथ चले To know His will and voice. और उसकी आवाज को और उसकी योजना को जाने, And to be a blessing to this world. ताकि इस दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहरे। Operate through them, Holy पवित्र Spirit. आत्मा उनके द्वारा कार्य करे। The prophetic power of God is coming upon वो you. पवित्र आत्मा परमेश्वर की भविष्यवाणी की You सामर्थ will आती know है। the Lord. आप परमेश्वर को जानेंगे। You will show the आप Lord. परमेश्वर को प्रदर्शित करेंगे। Fill them, Lord. उन्हें भर दे परमेश्वर। Fill them, उन्हें Lord. भर दे परमेश्वर। Right now. इसी समय Receive His power. उसकी सामर्थ को ग्रहण करें। Receive His prophetic grace. उसके भविष्यवाणी के अनुग्रह को ग्रहण करें। Give them the power to minister. उन्हें सामर्थ दे सेविकाई के लिए, The power to pray and bring your miracles. ताकि प्रार्थना करके आश्चर्य कर्म को लाने वाले हो, To bring your healing presence. ताकि आपके चंगाई देने वाली To bring सामर्थ your को लाए, love. आपके प्रेम को लाने वाले हैं, And joy into others. और दूसरों के जीवन में आपके आनंद को To लाने bring वाले your हो, blessing into ताकि others. दूसरों के जीवन में आशीष लाएं, Use them in their उनकी ministry. सेवकाई में उन्हें इस्तेमाल करें। Mighty Holy Spirit. पराक्रमी पवित्र He's आत्मा, working in you. वो आपके भीतर कार्य करता The है। hand of the Lord Jesus is coming upon you. परमेश्वर यीशु का हाथ आता His है, nail pierced hands are coming upon you. उसके छेदे हुए हाथ आपके ऊपर आते हैं। God is healing your kidney right now. परमेश्वर आपकी किडनी को चंगा कर रहा है इस समय। It has weakened your body. उसने आपके शरीर को दुर्बल किया है। No अब more. और नहीं, No more, अब Lord. और नहीं परमेश्वर। Let the strength of God come into the kidney. किडनियों में परमेश्वर का बल उतर आए। Let them वो live. जीवन जिए, Let them वो live. जीवन जिए। Heal the blood disease. वो हर एक रक्त की समस्याओं को Heal चंगा the दे। women. बहनों को Let चंगाई them दे, be perfectly वो normal. पूरी तरह से चंगी हो Let there जाए। be deliverance. एक छुटकारा हो। You're praying for someone whose blood count level is low. आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके ब्लड के गिनती कम हो गई है, Platelet level is वो dropping. प्लेटलेट की स्तर गिरता जा रहा God है। is touching them. परमेश्वर उन्हें स्पर्श करते A हैं। miracle is happening right इसी समय एक now. आश्चर्य कर्म हो रहा है। God is reviving that person. परमेश्वर उस व्यक्ति को पुनः सामर्थ देते Even हैं। in your body. आपके शरीर में भी God is performing miracles. परमेश्वर आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं। Miracles. आश्चर्य कर्म, Heal them, उन्हें Lord. चंगाई दे परमेश्वर। Heal them from every हर एक tumor. ट्यूमर से उन्हें चंगाई दे, Take it away from them, Lord. उनसे दूर करे परमेश्वर। Heal them from every brain disease. हर एक ब्रेन की समस्या से उन्हें चंगाई दे। Has stroke paralyzed you? जो स्ट्रोक ने उन्हें लकवा ग्रसित कर Has दिया है, stroke paralyzed you? और जैसे वो लकवा ग्रसित हो गए हैं, Oh, God's compassionate hands are coming upon you. परमेश्वर के तरस करने वाले हाथ आ रहे हैं। Let the hands and legs and brain functions work in Jesus' वो name. हर एक हाथ और पैर और हर एक दिमाग सही रीति से काम करे यीशु के नाम में। Let there be life in their bodies, Lord. उनके शरीर में जीवन आए परमेश्वर। Healing power of God is flowing into your body. परमेश्वर की चंगाई की सामत आपके शरीर में बह रही है। He's healing the वो हर nerves. एक नर्व को चंगा कर रहा No है। more nervous अब और problems. कोई नर्व की समस्या नहीं। Straightening your back right वो now. आपके पीठ को सीधा कर रहा है, Giving you eyesight right now. आपको दृष्टि दे रहा है। Open your mouth and speak in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी जुबान को खोले और बोले, Heal, Lord. चंगाई दे You परमेश्वर। love to heal your आप people. प्रेम करते हैं कि अपने लोगों को चंगाई These are दे। your ये people. आपके लोग हैं, Grant them their उन्हें desires. उनकी चाहत को दे दे, Heal their उनके bodies. शरीर को चंगा करे, Set them free. उन्हें आजाद करे। Glory of the Lord is rising up upon you. परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उदय हो रही है।
God's blessing is coming upon your job. परमेश्वर की आशीष आपकी नौकरी पर आती है। Right now, इसी समय He's elevating you, वो आपको ऊंचा उठाता है, giving you permanent jobs, आपको स्थायी नौकरी देने के blessing your द्वारा, competitive exams, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आशीष देने के be लिए placed in top positions, आपको ऊंचे स्थान में बैठा रहा है। give them the right job, उन्हें सही नौकरी दे, give them the right partner, Lord, उन्हें सही जीवन साथी दे, increase their family, उनके परिवार का विस्तार करे, let there be a joyous married और life. उनके वैवाहिक जीवन में आनंद हो। Every problem between the married couples, let it be solved right now. हर एक विवाहिक दंपत्य जीवन में जो समस्या है वो दूर हो, Let there be place only for the love of Jesus. और उनके बीच में से परमेश्वर का प्रेम उतर आए। Let them speak the words of Jesus to each वो other. एक दूसरे से यीशु के शब्दों को कहें Be one with each और other. एक दूसरे के साथ एक हो, Serve God together. एक साथ परमेश्वर की सेवा करे, Serve God together. परमेश्वर की सेवा एक साथ करे, Pray together. एक साथ प्रार्थना करे, And the Holy Spirit will work through both of you. और आप दोनों के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। Couples, will you give your family life to Jesus? सभी जोड़े क्या अपने जीवन को यीशु को Tell देंगे? Him, use us, Lord. कहे परमेश्वर में इस्तेमाल करे, Make us a witness for you. हमें अपने गवाह ठहराए, Help us to serve you wherever you have planned. आपकी योजना में हमारी सहायता करें कि हम आपकी सेवा करें। Lord, be reflected through our family हमारे life. परिवार के जीवन के द्वारा आप प्रदर्शित हो। Bless them with a child, Lord. बच्चे की आशीष दे Let a परमेश्वर, child be formed in Jesus' name. यीशु के नाम से उनके गर्भ में संतान को रचना Oh, करे। a pure, precious child. ओ पवित्र पवित्र अनमोल Blessed by संतान, God to be a sign to this world. इस दुनिया के लिए एक चिन्ह ठहरे, एक ऐसे संतान की रचना करे। God is giving you godly children. परमेश्वर आपको परमेश्वर से भरे हुए संतान Praise देंगे, Him. उसकी तारीफ करे। God is healing diarrhea, परमेश्वर डायरिया को चंगा कर रहे healing हैं, your stomach once and for all, आपके पेट की समस्या को एक बार हमेशा के लिए चंगा healing कर your रहे हैं, ulcers, अल्सर को चंगाई दे रहे हैं, healing your fits, आपके दौरे को चंगा healing कर रहे every हैं, breathing problem. हर एक सांसों की समस्या को चंगाई दे रहे हैं। Be delivered in Jesus' name. यीशु के नाम से छुटकारे को पाओ। Mighty touch of God is coming upon God's people. परमेश्वर के लोगों पर पराक्रमी स्पर्श आ रहा He's है। working and working and वो working. तो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। Tell Jesus what you want. यीशु से कहें आप क्या चाहते हैं, He's granting वो you आपको दे रहा है every blessing. अनेक आशीषें। From the bottom of his heart, he loves you and blesses अपने you. हृदय की गहराई से वो आपको आशीषित करता और प्रेम करता है। You are God's आप beloved. परमेश्वर के प्रिय हैं, You are the people of आप Zion. सियोन की प्रजा है, You are a holy city. आप पवित्र शहर है, The Holy One of God. परमेश्वर के पवित्र जन। Keep them in your righteousness, अपने Lord. धार्मिकता में संभाले रहे परमेश्वर, Thirsting for you. आपके लिए प्यासे है, Seeking you. आपको ढूंढते हैं, Finding you. आपको ढूंढते हैं, Reading your word. आपके वचन को पढ़ते हैं, Hearing your word. आपकी आवाज को सुनते हैं, Speaking your words in this इस world. दुनिया में आपके वचन को कहते हैं। What a joy it is to live with Jesus. कितना अद्भुत आनंद है यीशु के साथ रहना इस Shall दुनिया we में। clap our hands and give glory to this wonderful Father? क्या हम ताली बजाकर इस अद्भुत पिता को महिमा दे, Give glory to your wonderful Father. अपने इस अद्भुत पिता को महिमा दे।